Hello my dear students, today we'll be completing our data handling using pandas. It's our last session for this topic. After this, pandas will be completed for class 12th. Now we'll start with Boolean indexing in data frame. Boolean word we have also discussed in the last video. Boolean means actually two terms are included here, that is true or false. Wherever these two terms are used, it means there something is in Boolean. Maybe data is in Boolean or maybe the index is in Boolean. Okay, let's start it. Today we are going to learn the indexing in Boolean. Means the index of your data frame. This is index जो हमारा by default 0 1 2 3 4 आता है. That how to do that in Boolean form. First of all, we have created a dictionary here. We know how to create a dictionary. With the help of this dictionary, we have created a data frame. In D1, we have created a data frame, and see here, this is the variable in which we have created the dictionary, and after that we have given the index. This is how to data frame any of the data frame. We can give any of the index. Okay, instead of it, whatever we want to write, any string we want to give, that we can give. But difference is what? String को हमें quotes में लिखना पड़ेगा. These are also a type of string, but look here, as they are Boolean, they are the keywords used in the programming languages. That's why no need to write them in quotes. Without quotes they are written here. Okay, index is equal to, within the square brackets, the terms whatever you want, but they will be true and false only. 4 इंडेक्स देने हैं, मेरे पास 4 वैल्यूज हैं. ओके, फॉर दैट ट्रू फॉल्स randomly I have written. When we'll print our data frame, we can see that here the indexing is totally changed. Now the index is in Boolean. Here using the LOC, location, we know what is location. Through this function we can extract the values whatever we want from the data frame. Here I have written from data frame D1, I want to have the values of true index. Wherever the index location is true, that we want. Okay, true लिखा. जिसका भी true index था, first and third row, they will be displayed. Okay, after that here ILOC, I is index जो by default index होता है. Okay, if I'll write 0, then 0 index कौन सा होता है? That is the first row. So it will display only the first row. You can see in first row name is A and age is 12. That's written here. Next is merge operations in data frame. Merging, I think we all know, merge means to combine. Okay, here we will learn to combine two data frames. Got it? Two data frame might hold different kinds of information about some entity, but for combining two data frame, we must have something common in them. दो data frame के बीच में कुछ common होगा, only then we'll be able to combine them. Okay, कुछ तो कोई तो कड़ी चाहिए ना जोड़ने के लिए. To join these data frames in pandas, there are many methods. Merge is there, join is there. One by one we'll learn both. How we can merge your data frame variable, then pd dot merge two data frame जिनको हम merge कर रहे हैं और through which column we are merging. These details we have to verify, and this will give the common rows between the two data frames. Okay, let's learn it through practical. You can see 3 dictionaries I have created, D1, D2, D3. तीनों को मैंने प्रिंट करवाया. आफ्टर दैट यूजिंग दिस सेम डिक्शनरी, इन्हीं डिक्शनरी को यूज करके मैंने 3 डाटा फ्रेम बना दिए, DF1 2 3. गॉट इट? डाटा फ्रेम बनाने हम अब तक सीख चुके हैं अच्छे से. नाउ अगेन आई हैव टेकन अ वेरिएबल DF4. हेयर इन DF4 आई एम मर्जिंग DF1 एंड DF2, दोनों को मिलाकर एक डाटा फ्रेम बना रही हूँ. दैट विल बी सेव्ड इन DF4. pd dot merge, merge is a function of pandas. Okay, and within the braces we have to specify the 2 data frames which we want to merge, और 3 data frames can also be defined here. जितने आपने join करने हैं, combine करने हैं, that you can define here. Okay,
आफ्टर गिविंग दिस फंक्शन व्हाट इट विल डिस्प्ले, इट विल डिस्प्ले, जैसे मैं df4 को डिस्प्ले करती हूँ, इट विल डिस्प्ले ओनली द कॉमन वैल्यूज of df1 and df2 in दो डाटा फ्रेम्स में. You can see 2, 3, 4, 5. These values are same. You can see here in wherever the common values are there, that will be displayed. Common of these two data frames which we are combining. Okay. After this, another method of merging. Method is same always, only some attributes are extended. Here in variable df5 I am merging again df1 and df2, but here I am giving a condition that on column roll number. Okay, columns को हमने name दिए हुए, roll number, name and age. Only I want to combine these two data frames on roll number column. Okay, तो roll number column will be displayed. कौन से रोल नंबर? द कॉमन रोल नंबर्स ऑफ दीज टू डाटा फ्रेम्स. इन्हीं दो डाटा फ्रेम्स के कॉमन रोल नंबर्स आएंगे. एंड एज पर दोज रोल नंबर, आपको दिख रहा है नेम एक्स. एक्स मीन्स जो हमारा पहला वाला डाटा फ्रेम है, पहले डाटा फ्रेम के नेम्स, पहले डाटा फ्रेम की एज. एंड वाई मीन्स द सेकेंड डाटा फ्रेम, मीन्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. सेपरेटली 4 columns will be displayed. Only the roll number column will be single, that will also be common only. जो common roll number है, according to that the data is displayed from both the data frames. This is how the merging is done for the corresponding column value, and here the corresponding column we have given a roll number. Now merging continues in many methods. We'll discuss here one by one. With the given command, the column on which you want to merge the data frames have different names. Means look here I have created 3 data frames. In data frame 5 df5 we are merging the data df2 and df3. okay, हम merge कर रहे हैं, but we have to tell कि कौन से column के through merge कर रहे हो, कौन से columns में से हमें common निकालना है. तो here two attributes I am using, left on and right on. इससे क्या होगा? सपोज एक डाटा फ्रेम में मैंने रोल नंबर नाम दिया हुआ, एक डाटा फ्रेम में मैंने रोल नंबर की बजाय आईडी दे रखी है, कॉलम नेम इज आईडी. तो ये दीज आर मोर बेनिफिशियल इन दोज केसेस वेयर कॉलम नेम्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. ओके, तो मर्जिंग के लिए हमें बताना पड़ेगा भाई लेफ्ट साइड का जो डाटा फ्रेम है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट. ओके, तो लेफ्ट साइड के डाटा फ्रेम में कौन सा कॉलम लेना है आपने मर्जिंग के लिए कॉमन, और राइट साइड के डाटा फ्रेम में दिस इज राइट साइड. ओके, लेफ्ट राइट. तो राइट साइड के डाटा फ्रेम में विच कॉलम वी वांट राइट नाउ. तो बाई चांस मेरे दोनों कॉलम्स के नेम सेम है, बट इन केस इफ दे आर डिफरेंट देन दिस इज मोर बेनिफिशियल. ओके, एंड इट विल शो द कॉमन वैल्यूज ऑफ दीज टू. ये जो भी अगर ये डिफरेंट नेम्स होते तो डिफरेंट वालों में से जो भी कॉमन होते अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी डिस्प्लेड. ओके, नेक्स्ट हियर अगेन मर्जिंग, सेम मेथड, लेफ्ट ऑन राइट ऑन, दैट सेम. वन थिंग न्यू, एन एट्रीब्यूट हाउ, मीन्स कैसे मर्ज करना है. हाउ का मीनिंग हमने यही सीखा ना आज तक, हाउ कैसे. तो वैल्यू ऑफ हाउ इज आउटर हेयर. आउटर मीन्स इट विल डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज, कोई कॉमन वॉमन नहीं दिखेगा. जो भी जिनको भी हम मर्ज कर रहे हैं फ्रॉम दोज टू डाटा फ्रेम्स, इट विल डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज, और जहाँ पर भी जो भी वैल्यू मिसिंग है इट विल डिस्प्ले मिसिंग वैल्यू, मीन्स नैन, नॉट अ नंबर वैल्यू. गॉट इट. कोई कॉमन नहीं ढूंढा, दोनों को मिला दिखाया इसने, दोनों को मर्ज किया. All the values are displayed, but those values which are missing, instead of that nan is displayed. Clear? In outer all the values are displayed. Okay, then next is you can see that on the basis of roll number column we have merged. तो roll number तो सारे दिखा रहा है क्योंकि outer है, outer की वजह से सारे दिखाएगा, no common का कोई चक्कर नहीं है. After that फ्रॉम लेफ्ट साइड डाटा फ्रेम नेम फर्स्ट, ये नेम तो कॉलम का नाम है, फर्स्ट कहाँ से आया, यहाँ हमारे सुफिक्स से. ओके, दिस इज अगेन एज फर्स्ट. अब सेकंड डाटा फ्रेम का नेम सेकंड, एज सेकंड.
ये सुफिक्स की वजह से आया। क्लियर है। अब नेक्स्ट में हमने सिर्फ हाउ को नई वैल्यू दी है इनर। आउटर में क्या कर रहा था, सारी वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा था, दोज वैल्यूज विच वर नॉट अवेलेबल, इंस्टेड ऑफ दैट नैन वॉज डिस्प्लेड। बट इनर में क्या कर रहा है, ओनली द कॉमन वैल्यूज ऑफ बोथ द डाटा फ्रेम्स आर डिस्प्लेड। क्लियर है। नेक्स्ट आता है राइट। हाउ की जगह हमने कर दिया राइट। इट विल डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज from the right data frame which are matching with the left data frame। ध्यान से समझेंगे। For the attribute right, attribute value right, how में जब हम right लिखते हैं, it will display the records from the right side of data frame। दो data frame दिए हैं, left और right। right side data frame में से values it will display with matching record of left data frame। clear। next is how को जब हम left value देते हैं, what it will do, it will display the values from the left data frame। कौन सी values, which will be matching with the right side data frame। got it। ध्यान से समझने की जरूरत है। हाउ में जो वैल्यू दे रखी है, राइट दिया है तो वैल्यूज कहाँ से डिस्प्ले होंगे, राइट साइड वाले डाटा फ्रेम में से डिस्प्ले होंगी, बट कौन सी वैल्यूज, जो लेफ्ट वाले से मैच करेंगे। ओके। और अगर हाउ की वैल्यू लेफ्ट है तो इट विल डिस्प्ले द वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट डाटा फ्रेम, बट कौन सी, विच विल बी मैचिंग विद द राइट साइड डाटा फ्रेम। क्लियर है। नेक्स्ट, here two new attributes we have used with merge, right index and left index। what it will do, it will match or it will display the common index values from both the data frames। राइट साइड के डाटा फ्रेम के भी इंडेक्स को ट्रू हमने किया है, मीन्स वो भी शो हो, और लेफ्ट साइड के भी शो हो, दोनों के कॉमन। एक्चुअली बोथ वर हैविंग सेम, डाटा फ्रेम 1 में भी यही वैल्यूज थी, 2 में भी यही थी, तो दैट्स वाई इट्स डिस्प्लेइंग ऑल द वैल्यूज। गॉट इट। नेक्स्ट इज क्वांटाइल। एक नई टर्म आई है क्वांटाइल। इट्स अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द वैल्यूज एट गिवन क्वांटाइल ओवर अ रिक्वेस्टेड एक्सिस। थोड़ी टिपिकल लाइन हो गई ना, अब हम ध्यान से आराम से समझते हैं। क्वांटाइल इज अ वर्ड विच केम फ्रॉम क्वांटिटी। हमने क्वांटिटी पढ़ी हुई है, क्वांटिटी एक वर्ड है, फ्रॉम सेम क्वांटिटी द वर्ड क्वांटाइल केम। ओके। क्वांटाइल से ही क्वार्टाइल आया। ध्यान से सुनेंगे, दो वर्ड्स यूज कर रही हूँ। क्वांटाइल मीन्स एनी डिस्क्रिप्शन, एनी इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, एंड सेकेंड वर्ड आई एम यूजिंग क्वार्टाइल, जिसको आप क्वार्टर भी बोलते हैं कई बार, है ना। फ्रॉम क्वार्टर क्वार्टाइल्स इज कमिंग। ओके। क्वार्टाइल्स इन स्टैटिस्टिक्स, these are the values which divides the data in the quarters। क्वार्टर्स का मीनिंग हम सबको पता है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इट्स अ पाथ A to B, एक पाथ रास्ता दिखाया हुआ है। C I have marked as midpoint of AB, तो it means now this path is divided in two equal parts। now again between A and C मैं again एक और मिड पार्ट कर दिया मैंने, B और C के बीच में भी एक मिड पार्ट कर दिया। now this AB path is again divided in between 4 equal parts। चार पार्ट्स को बोला गया है क्वार्टाइल। ओके। क्वार्टाइल इज अ पार्ट ऑफ क्वांटाइल। गॉट इट। ये सारे के सारे क्वांटाइल के पार्ट्स हैं। दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। ओके। अगर किसी चीज़ के मैं 2 पार्ट कर रही हूँ दैट्स कॉल्ड मीडियन, 3 कर रही हूँ दैट कॉल्ड टर्शाइल, अगर 4 पार्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल, 5 कर रहे हैं तो क्विंटाइल, सेक्टाइल, सेप्टाइल्स, इन द सेम पैटर्न इट गोज ऑन। ओके। हमें क्वार्टाइल्स क्लियर होना चाहिए। 4 क्वांटाइल्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। अब मैंने ए बी के 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो देयर आर 3 डिफरेंट सेक्शंस इन बिटवीन द लाइन। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल मीन्स इस लाइन का 25% है ना। देन Q2 सेकेंड क्वार्टाइल ऑफ दिस लाइन मीन्स 50% ऑफ दिस AB।
then Q3 is third quartile, it means 75% of this area. ओके परसेंट हमें पता चल जाएगा. अगर 0.1 करती हूँ इट मीन्स 10%, 0.2 करती हूँ तो 20%, 0.25 करती हूँ तो इट मीन्स 25%. गॉट इट. ये चीज़ क्यों बता रही हूँ? बिकॉज दिस विल बी यूजफुल इन कैलकुलेटिंग क्वांटाइल. नाउ विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट दिस quantile or quartile, whatever you can say, but we must know that quartile is a part of quantile. Okay, and function is quantile. जितने परसेंट आप ब्रेसेस में डालेंगे that percent is calculated. If we are asked to calculate manually the quantiles, then first what you have to do, that you have to arrange the data in ascending order. After that we have to count the observation, how many data is there. Okay, how much count is there, and as per that we can calculate. Here the first quartile method is given. क्वार्टाइल मीन्स अभी मैंने बताया देयर आर, अगर एक पाथ को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में कर दूं तो देयर विल बी 3 क्वार्टाइल्स इन बिटवीन. ओके, 25%, 50% एंड 75%. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्रिएटेड अ डाटा फ्रेम विद df1 वेरिएबल and the method which we are using, that is df1 means your data frame variable name, and along with that we are using quantile function, and within the braces कितने परसेंट निकालनी है आपने. I have written 0.5. 0.5 का मतलब 0.50 और उसका मतलब क्या होता है 50%. ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ यू कैन कैलकुलेट the 50% quantile of df1 means this data frame, then this is the answer. Okay, df1 dot quantile 0.25 means quantile 1. first quantile ये निकाली, second quantile ये निकाली, third quantile. This is how. Next is var means this is the method to calculate the variance of the given data frame. How it can be done? First of all we'll create a data frame. I have created a data frame. The simple function is there, that the variable in which the data frame is created, and with that dot var, that's it, nothing else. Automatically the variance will be calculated as per the column. Okay, अब आप देखेंगे रोल नंबर का वेरिएंस आ गया, एज का आ गया, नेम का कहाँ गया भाई? Why? Because the numerical values are not there. That's why. क्योंकि variance is a math term, mathematical term है, arithmetical function है, and that will be done on numerical values only. Okay? अब variance को दो टाइप से और निकाल सकते हैं, along the columns and along the rows. If we are not mentioning anything, it means axis 0 है. By default axis is 0. Axis 0 means column wise. ओके, पहले भी बताया मैंने, एक्सिस 1 मीन्स रो वाइज, एक्सिस 0 मीन्स कॉलम वाइज. क्लियर है? नाउ यू कैन सी मैंने कुछ नहीं डाला और जब एक्सिस 0 डाला, बोथ आंसर्स आर सेम. गॉट इट. मीन्स कॉलम वाइज पूरे रोल नंबर वाले कॉलम का वेरिएंस निकाल के दिखा दिया, एज कॉलम का वेरिएंस निकाल के दिखा दिया. क्लियर? देन इफ आई हैव डन एक्सिस इज इक्वल टू 1, देन फॉर इंडेक्स 0 रो दिस कंप्लीट द वेरिएंस इज हियर. For index 1 row, for it means for individual row the variance will be displayed in front of you. Isn't it easy? हमें mathematical calculation से कुछ नहीं लेना है, only we must know how to calculate using a function in pandas. Now some advanced operations on data frames. Till now we have learnt various operations, how to apply them on data frames. Now there are some advanced function, that is pivoting data frames. First of all a new term is coming here, that is pivoting. Pivoting means extracting a new data frame from the existing data frame by reshaping that. उसे किसी कॉलम को रो बना दिया, किसी रो को कॉलम बना दिया. मीन्स देयर आर सेवरल मेथड्स and as per them reshaping a data frame and extracting another new data frame from the previous one. Okay, this method takes 3 arguments. 3 चीज हमें देनी है. नंबर 1 इंडेक्स, देन कॉलम, देन वैल्यूज. एटलीस्ट इन तीनों में से 2 must be given. Okay, let's see how practically it's done. First of all I have created a data frame. You can see here
देन फॉर पाइवेटिंग अ वेरिएबल, एनी वेरिएबल ऑफ योर चॉइस, मैंने pv1 ले लिया, इज इक्वल टू देन योर डाटा फ्रेम वेरिएबल, इन df1 वी हैव क्रिएटेड अ डाटा फ्रेम, तो df1 dot pivot, it's a function, this function we are using pivot function, pivot, एंड विद इन द ब्रेसेस मैंने आपको कहा था 3 चीज़ हमें देनी है, इंडेक्स, कॉलम एंड वैल्यूज़, वही तीनों चीज़ हम दे रहे हैं। मीन्स मेरे नए डाटा फ्रेम में इंडेक्स क्या बनेगा, इस डाटा फ्रेम का कोई भी कॉलम, फर्स्ट कॉलम सपोज मैं दे रही हूँ, रोल नंबर इंडेक्स बन जाए। ओके, देन सेकेंड थिंग वी आर गिविंग कॉलम्स, कॉलम नेम्स, आई वॉन्ट कि जो ये नेम्स हैं मेरे पहले एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम के, दीज नेम्स शुड अपीयर एज कॉलम नेम्स, तो दे दिया। रेस्ट वैल्यूज़ मीन्स एलिमेंट्स ऑफ डाटा फ्रेम, जो मेन वैल्यूज़ होती हैं, कौन से कॉलम को आप शो करना चाह रहे हैं। मेरे पास वैसे मैंने 3 ही कॉलम बनाए हैं, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, दैट्स वाई आई हैव गिवन एज। देन व्हेन यू प्रिंट दिस डाटा फ्रेम, इट विल डिस्प्ले, लुक हेयर, जो आपके रोल नंबर थे वो इंडेक्स बन गए हैं, यू कैन सी हेयर, जो आपके नेम्स थे दे आर नाउ द कॉलम नेम्स, दिख रहे हैं, एंड द वैल्यूज मीन्स एज, जो एज थी दे आर द एलिमेंट्स नाउ, और जो मिसिंग, जिन वैल्यूज़ का हमें पता ही नहीं क्या आना चाहिए, फॉर देम नैन इज देयर। ओके, आप कहेंगे ये 10 कैसे आया, ए स्टूडेंट का रोल नंबर 1 की जो वैल्यू आनी चाहिए, यू कैन सी ए स्टूडेंट 1 रोल नंबर, उसकी वैल्यू क्या है 10, इट्स हेयर। ओके, इन द सेम वे बी एंड 2, these values are corresponding to your data frame, the existing data frame. Okay, जैसे यहाँ B 2, you can see here 2 roll number, B की value 11 है, here also the same, got it, means corresponding values are given here only, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, जैसा आपने कहा right like that it's done। तो from existing data frame a new data frame is extracted using the pivot function, clear। आगे चलते हैं। नाउ हेयर यूजिंग दिस मेथड वी कैन ऑल्सो यूज फिलना फंक्शन, हमने फिलना फंक्शन लास्ट वीडियो में किया था। मीन्स इंस्टेड ऑफ दीज मिसिंग वैल्यूज इफ वी वांट टू रिप्लेस दैम, सेम फंक्शन आई एम यूजिंग pv1 में, डाटा फ्रेम 1 को मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ यूजिंग पाइवोट फंक्शन, इंडेक्स में अगेन रोल नंबर, कॉलम्स में नेम, वैल्यूज में एज। ब्रेसिस क्लोज करने के बाद आई हैव यूज्ड फिलना फंक्शन, फिलना and in the braces single quotes starting and closing, that's done, means कुछ नहीं है इनके बीच में, खाली हो। ओके, तो what you can see same data frame is displayed, सिर्फ नैन वैल्यूज की जगह खाली आ गया, नथिंग, नो जीरो, नो नैन, नो मिसिंग, कुछ नहीं दिया मैंने, खाली छोड़ दिया, बिकॉज हेयर आई वी हैव लेफ्ट इट ब्लैंक, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज हेयर वी हैव स्किप्ड वैल्यूज, जैसे मैंने यहाँ वैल्यूज दिया था, मैंने आपको बताया 3 में से मिनिमम 2 तो देने ही देने हैं। ओके, तो दीज 2 वी हैव गिवन, वैल्यूज नहीं दिया, तो हेयर व्हाट इट विल डू, इंस्टेड ऑफ दीज 2 कॉलम्स, बाई चांस इन 2 की बजाय मेरे पास एक ही कॉलम बचा हुआ है, लेकिन सपोज आपने एक ऐसा डाटा फ्रेम लिया है इन विच 3, 4, 5 कॉलम्स आर देयर, तो इन दैट केस रेस्ट ऑल द 2 और 3 जितने भी कॉलम्स बच गए, इंस्टेड ऑफ दीज 2, फॉर फ्रॉम दोज ऑल द वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड। हियर यू कैन सी एज ही बचा था तो एज लिखा है, उसकी वैल्यूज आ गई। अगर कोई और कॉलम होता, सपोज मार्क्स होता, तो ये एज ख़त्म होने के बाद यहाँ से मार्क्स लिखा हुआ था, उसकी वैल्यूज आती। इन द सेम वे मैनी कॉलम्स विल बी क्रिएटेड एट दैट टाइम, क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ टू फिल्टर द वैल्यूज एज पर एनी इंडिविजुअल कॉलम। सपोज मैंने क्या किया, ये pv1 में मेरा नया डाटा फ्रेम आ गया था, इन दैट pv1 एज पर द एज कॉलम, एज पर ए कॉलम एज वैल्यूज एंड ए कॉलम में मैंने फिलना फंक्शन लगाया है और उसको ब्लैंक छोड़ा है। मीन्स सिर्फ इस डाटा फ्रेम से इन वैल्यूज़ का ए कॉलम की शो करना है, अगर मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो दे विल बी लेफ्ट ब्लैंक। यू कैन सी हेयर, इस डाटा फ्रेम में से इस वैल्यूज़ का
इस कॉलम का वैल्यू सिर्फ 10 है, रेस्ट आर नैन। नैन को हमने ब्लैंक कर दिया फिल ना यूज करके, दैट्स वाई ओनली 10 इज डिस्प्लेड, रेस्ट आर ब्लैंक। गॉट इट। नेक्स्ट इज, अभी हमने पाइवोट फंक्शन किया, दैट वाज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ न्यू डाटा फ्रेम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। एक सेकेंड मेथड और है फॉर सेम थिंग, दैट इज पाइवोट टेबल। In this we can have any type of aggregation. Aggregation में क्या है? Maximum, minimum, sum, count, all these functions we can apply. A sort of grouping of any data field we can do here. How? Look here. First of all, a data frame I have created. Then on this data frame we have applied pivot table function. A variable I have taken d1. In that we are creating another data frame pd dot pivot table, and within the braces I have written my data frame name जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देन इंडेक्स ऑलरेडी बताया है, इंडेक्स इज इक्वल टू जिसको भी आपने इंडेक्स बनाना है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉलम। रोल नंबर आई एम यूजिंग हियर। अलॉन्ग विद दैट वी विल स्पेसिफाई विच फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एग्रीगेट फंक्शन। दिस इज एन एट्रीब्यूट, मीन्स विच एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सपोज आई हैव यूज सम, विद इन द ब्रेसेस इट विल बी रिटन, एंड व्हेन यू प्रिंट दिस डाटा फ्रेम इट विल शो इंडेक्स में रोल नंबर्स। ओके, रोल नंबर्स के अलावा बचा ही कुछ नहीं है, सिर्फ एज बचा हुआ है, तो एज विल बी डिस्प्लेड इन द वैल्यूज एंड दैट थ्रू द एग्रीगेट फंक्शन इज सम। अब सिर्फ एज ही है अकेला, किसके साथ सम होगा? तो मीन्स फॉर ऑल इंडिविजुअल वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड। कुछ और होता तो इट विल बी डिस्प्लेइंग एज सम। ओके, नेक्स्ट लुक हेयर, यहाँ क्लियर हो गया आपको ये डाउट। हेयर आई हैव यूज्ड इंस्टेड ऑफ सम आई हैव यूज्ड काउंट फंक्शन। काउंट मीन्स काउंटिंग करना, कितने कितने वैल्यूज हैं। ओके, तो हम सम फंक्शन नेम में अप्लाई नहीं हो सकता था, दैट्स वाई यहाँ सिर्फ एज फंक्शन डिस्प्ले हुआ, लेकिन काउंट तो नेम पे भी हो सकता है, हम काउंट कर सकते हैं आराम से। लुक हेयर दैट्स वाई इफ वी कैन काउंट नेम एंड एज बोथ थिंग्स, तो इट इज शोइंग बोथ द कॉलम्स। और कितनी कितनी वैल्यूज हैं? एक एक वैल्यू है, दैट्स वाई काउंटिंग इज डिस्प्लेड। ओके, क्लियर। अब देखो, मैंने यहाँ आपका डाउट और क्लियर करने के लिए सारे फंक्शन लगाए हैं, मैक्स भी लगा दिया, काउंट भी लगाया, मिनिमम भी लगाया, मीन भी लगाया। यू कैन सी हेयर मैक्सिमम में मैक्सिमम एज लिखा है, नेम पे नहीं लगाया, देखिए होगा, हो ही नहीं सकता, स्ट्रिंग वैल्यूज आर देयर। काउंट में दोनों में हो लग गया, मिनिमम, मीन, एज, ऑल द वैल्यूज आर डिस्प्लेड हेयर। जितने आप एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे all those values are displayed here. Okay, next is sorting. Sorting, I think we all know, means arranging our data either in ascending or in descending way order. Okay, in data frames the sorting can be done by two methods. First is by values. Okay, means by values means थ्रू कॉलम्स, कॉलम वाइज अगर हमने सॉर्टिंग करनी है, मीन्स दैट फॉर दैट वी विल यूज द फंक्शन सॉर्ट इंडेक्स। ओके, सॉरी, सॉर्ट वैल्यूज। एंड सेकेंड मेथड इज बाय इंडेक्स, इट मीन्स रो वाइज सॉर्टिंग। इट मीन्स वी विल यूज फंक्शन सॉर्ट इंडेक्स। हेयर वैल्यूज वाइज सॉर्टिंग विल बी देयर, हेयर इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग विल बी देयर। और इंडेक्स पे सॉर्टिंग अगेन as per axis, 0 axis और one axis के through. Let's do it practically. First of all, we have created a data frame. Here I have created one data frame, that is df1. On the same data frame I have applied the first function, that is sort values, df1 dot sort values, and within the braces we have to define that we want to सॉर्ट दिस डाटा फ्रेम एज पर विच कॉलम, रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है या एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। ओके, हेयर आई हैव गिवन रोल नंबर। बाय डिफॉल्ट द सॉर्टिंग इज डन इन असेंडिंग ऑर्डर, हर जगह यही होता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग करना है तो समथिंग एल्स इज टू बी डन। ओके, मैंने रोल नंबर के एज पर किया, तो यू कैन सी
रोल नंबर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आई हैव रिटन इट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इट्स सेम, हमें पता ही नहीं चल रहा कि सॉर्ट हुए भी हैं कि नहीं। मूव नेक्स्ट, हेयर आई हैव गिवन वन एट्रीब्यूट असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, दैट्स वाई इट्स ट्रू। तो ऑलरेडी असेंडिंग में था, मैंने आपको कहा ना बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ नहीं बता रहे हैं कि असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में करना है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी डन इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। और यहाँ पर तो मैंने बताया असेंडिंग ट्रू मीन्स असेंडिंग में करना है, तो इट मीन्स बोथ विल बी सेम, ओके। नेक्स्ट इज असेंडिंग को मैंने फॉल्स कर दिया, इट मीन्स असेंडिंग नहीं करना है, तो असेंडिंग नहीं करना तो व्हाट वी हैव टू डू मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली। तो यू कैन सी विद रोल नंबर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो यू कैन सी दीज आर डिस्प्लेड इन द descending order, indexes, all the data is now in descending order but as per roll number, got it। Now these were the sort values, now we'll come to this function sort index। अब index किस पे कैसे sorting करेंगे, सिंपल मैंने लगाया सबसे पहले df1 my data frame, then sort index function I have applied, कुछ नहीं लिखा अंदर, अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो it means बाय डिफ़ॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इट इज़ सॉर्टेड। और अब इंडेक्स वाइज हम सॉर्टिंग कर रहे तो इंडेक्स तो अपने आप ही सॉर्टेड होते हैं 0 1 2 3 4, तो इट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज़ द डाटा फ्रेम इज क्रिएटेड, गॉट इट। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, इन द ब्रेसेस आई हैव डिफाइंड असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, इट मीन्स आई वॉन्ट टू डिस्प्ले इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन व्हाट इट विल डिस्प्ले, यू कैन सी and now all the indexes are in descending order and as per them the data is displayed, got it। अगर ascending को true कर देती हूँ तो you can see जब कुछ भी डिफाइन नहीं किया था, सिर्फ सीधा sort index लगाया था and this data both are same, okay। now see here ascending true किया but axis 0, axis 0 means column wise, got it। तो यू कैन सी असेंडिंग ट्रू, ये और ये सेम है बिकॉज ऑलरेडी इट इज कॉलम वाइज डन। एक्सिस 1 मीन्स रो वाइज सॉर्टिंग इज डन, हाउ इट्स डन, असेंडिंग ट्रू और एक्सिस की है मैंने 1 मीन्स रो वाइज। नाउ यू कैन सी हेयर व्हाट इज डन हेयर, दिस कॉलम इज रिप्लेस्ड एट फर्स्ट प्लेस मीन्स उल्टा, पीछे का आगे फिर आगे, फर्स्ट वाला लास्ट बन गया, लास्ट वाला फर्स्ट बन गया, दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज डन हेयर। अगेन अगर असेंडिंग फॉल्स करती हूँ एक्सिस 0, यू कैन सी जिस सीक्वेंस में मेरे कॉलम्स है सीक्वेंस इज मेंटेन्ड ओनली इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स इज चेंज, ओके। मीन्स थ्रू एक्सिस 1 व्हाट इज डन, द सीक्वेंस ऑफ योर कॉलम्स इज रिवर्स्ड, लास्ट वाला फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट बन जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट इज रीनेमिंग इंडेक्स एंड डिलीटिंग द इंडेक्स, मीन्स इंडेक्स इसको हम रीनेम कर सकते हैं। हमने 2-3 मेथड अलग अलग सीखे थे, अभी बुलियन भी सीखा हमने, उससे पहले और भी मेथड सीखे हैं फॉर चेंजिंग द इंडेक्स। यहाँ पर एक और मेथड है, लुक हेयर, यूजिंग रीनेम फंक्शन वी कैन रीनेम, यूजिंग रीसेट फंक्शन जो रीनेम किया है उसको वापस रीसेट कर देंगे, और जो रीसेट किया है उसमें से हम कुछ डिलीट करना चाहते हैं, दैट वी कैन डू, ऑल आर इजी, 1 by 1 विल यूज इट। सपोज दिस डाटा फ्रेम वी हैव क्रिएटेड df1, ओके। नाउ इन df2 आई एम रीनेमिंग, df1 डॉट रीनेम फंक्शन लगाया एंड विद इन द ब्रेसेस इंडेक्स एट्रीब्यूट लगाया मैंने, दिख रहा है, एंड स्पेसिफाइंग अ डिक्शनरी, जैसे की वैल्यू होता है, ऐसे ही मैंने कीज़ में इंडेक्स नंबर दिए हैं और वैल्यूज़ में जो इंडेक्स नेम मैं देना चाहती हूँ, ओके। मीन्स वैल्यूज़ आर ऑफ माई चॉइस एंड कीज़ आर द डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नंबर, क्लियर है। जैसे ही मैं इस डाटा फ्रेम को प्रिंट करूँगी इट विल डिस्प्ले, यू कैन सी इंस्टेड ऑफ दीज इंडेक्सेस न्यू इंडेक्स नेम्स, यूजिंग विच फंक्शन, यूजिंग रीनेम फंक्शन, क्लियर। अब मुझे वापस वही चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट वाले चाहिए, सिंपल मेथड, वी कैन सेव इट इन अनदर डाटा फ्रेम, df3 इज इक्वल टू
कौन से डाटा फ्रेम में थे मेरे ये न्यू नेम्स? df2 में. df2 dot reset underscore index and the braces. When you print this df3, you can see here what it will do. जो इंडेक्स मैंने बनाए थे, those indexes are displayed separately, but my index are by default they are back. Okay, it will reset again, this function will reset again the default indexes. जो इंडेक्स हमने दे दिए वो कहीं नहीं जा रहे हैं, but it will reset the default indexes. After that, what it is doing, if I want to drop any of the index specific row, how? Look here, in df2, this was my df2, मेरा डाटा फ्रेम है. रीसेट इंडेक्स लगाना हमें आता है कि वे इंडेक्स रीसेट कर दिए हमने. उसके साथ आई हैव यूज्ड अ मेथड, अ फंक्शन ड्रॉप. ड्रॉप मीन्स डिलीट करना, हटाना. एंड विद इन द ब्रेसेस वी विल मेंशन द इंडेक्स, विच इंडेक्सेस वी वांट टू रिमूव. सपोज मुझे 1 और 3 इंडेक्स वाली कंप्लीट रोज डिलीट करनी है, तो 1,3 आई हैव मेंशनड हियर. तो इट मीन्स ये 1 वाली रो पूरी और ये 3 इंडेक्स वाली रो, these 2 rows should be deleted. And if we print this, we can see 0 के बाद 2 है, 1 is not there, complete row is removed. 2 के बाद 4 है, 3 is not there, तो this 3 is removed. This is how we can drop any specific index row using the drop function. Now we will learn how to calculate standard deviation. अगेन अ मैथमेटिकल फंक्शन. हमें कुछ नहीं सीखना मैथ्स में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है कैसे नहीं. ओनली वी शुड नो दैट थ्रू विच फंक्शन इट कैन बी कैलकुलेटेड. वी शुड नो द मेथड. ओके, एंड यूजिंग .std फंक्शन वी विल यूज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी हैव क्रिएटेड अ डाटा फ्रेम df1. सिंपल फंक्शन हमने लगाना है df1.std. तो बाय डिफॉल्ट column wise the standard deviation it will be calculated. You can see roll number की standard deviation calculate हो गई है, age की हो गई है, name की क्यों नहीं हुई भाई? Because standard deviation is an arithmetic function. For calculating this, numerical values are required, but in names string values are there. Okay, अब standard deviation we can calculate it in 2 ways, x is 0 and x is 1. मैंने पहले भी बताया, इफ नथिंग वी आर मेंशनिंग इट मीन्स इट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन एक्सिस 0 कॉलम वाइज. बाय डिफॉल्ट इट इज कैलकुलेटेड. यू कैन सी अगर मैं यहाँ ब्रेसेस में एक्सिस 0 भी करती हूँ तो रिजल्ट इज सेम, आउटपुट इज सेम. ओके, इट मीन्स ऑन एक्सिस 0 इट विल बी कैलकुलेटेड कॉलम वाइज, एंड इफ वी डू इट एक्सिस 1 देन वी कैन इजीली सी हियर फॉर रो 0 it says for row 1 means for each and every row it is individually calculated. Okay, this is how we can calculate the standard deviation. Next is group by function. This is a function जिसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. In this function we will complete this complete function in 3 steps. First, दिस फंक्शन इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ऑफ डाटा फ्रेम. हम एक डाटा फ्रेम के पार्ट्स करेंगे, देन विल अप्लाई सम फंक्शन एंड देन अगेन रिकम्बाइन दैट रिजल्ट. लुक हियर, सेम चीज़ को मैं थ्रू डायग्राम एंड थ्रू द प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझाऊंगी. बहुत ईजी है. लुक हियर, सपोज ये मेरा डाटा है. ओके, कीज ये है, डाटा ये है. ओके, यू कैन सी कीज आर रिपीटेड. ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है ना. मैंने अलग अलग इसके पार्ट्स कर दिए. ए वाले इकट्ठे कर दिए, बी वाले इकट्ठे कर दिए, सी वाले. ओके, देन आई हैव अप्लाइड अ फंक्शन, आई हैव एडिड देम. तो ए इज टोटल इज 5, बी टोटल इज 7 एंड सी टोटल इज 9. ओके, नाउ अगेन आई हैव रिकम्बाइंड दिस डाटा. ओके, तो आफ्टर कंबाइनिंग ये पूरा फॉर्मेट इस फॉर्मेट में भी हो सकता है ना. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ग्रुप बाय. किसी स्पेसिफिक कॉमन डिटेल को लेके वे विल क्रिएट ग्रुप्स यूजिंग एनी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द डाटा फ्रेम. गॉट इट. सेम फंक्शन थ्रू प्रैक्टिकल वी हैव डिस्प्लेड हियर. लुक हियर, आई हैव क्रिएटेड फर्स्ट ऑफ ऑल अ डिक्शनरी, and using this dictionary we have created a data frame.
ओके, बेसिकली एक डाटा फ्रेम बनाया हमने df1. On this data frame we have applied dot group by function का नाम भी यही है, dot group by. Okay, and within the braces we will specify the column name जिस पे आप ग्रुप बनाएंगे. ओके, ग्रुप तभी बनेंगे when this column will be having any common values. ओके, तो मेरी कॉमन वैल्यूज की में ही है, तो दैट्स वाई की. एंड विद डॉट सेपरेशन वी विल स्पेसिफाई कि भाई कौन सा फंक्शन लगाना चाह रहे हैं, काउंट लगा रहे हैं, मैक्सिमम लगा रहे हैं, मिनिमम लगा रहे हैं, सम लगा रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव हियर. ओके, आई हैव गिवन सम. नाउ व्हाट इट विल डिस्प्ले, कीज ग्रुप बना के जो कॉमन होगी उनको एक बार दिखलाएगा, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगी. पहले डुप्लीकेट थी, नाउ नो डुप्लीकेट्स आर देयर. ABC दिख रही हैं. ग्रुप बाय करने के बाद जो उसकी डाटा होगा उसका सम करेगा. यू कैन सी 579. सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ समझाया आपको. उसके बाद सेकंड मैंने आपको मैक्स लगा के दिखा रही हूँ. मीन्स इंस्टेड ऑफ सम, जैसे ए का टोटल 5 दिखाया, दिस 5 कैसे बना, 1 और 4 ऐड होके. बट हेयर मैक्सिमम, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 4. यहाँ पर 5, यहाँ पर 6. लुक हेयर, 4, 5, 6. As per the keys, the maximum data of that key will be displayed. I think it's clear. Next is drop now. नाम से क्लियर है. Drop, delete, है ना. Drop now means deleting. It will drop all the rows having nan values. एक सिंपल सा लॉजिक, सारी रोज डिलीट हो जाएंगी wherever any nan value will be there, means missing values will be there. Look here, I have created a data frame with some missing values. कैसे बनाया मैंने, लिस्ट लिए, कहीं 3 एलिमेंट लिए, कहीं 2 लिए, कहीं 4 लिए. Then from same list I have created a data frame. This is my data frame. In this 3 missing values are there. On this data frame we have used drop now function. d1 dot drop now. Okay, तो कितनी रोज में मेरे पास nan फंक्शन है, in 2 rows, 0 and 1 index. Okay, after applying drop now we can see सिर्फ मेरे पास 2 इंडेक्स बचा है, this one in which no missing values were there. Okay, तो drop now will delete all the rows having the missing values. Now the most important topic we are learning that how to import and export data between SQL means MySQL and Pandas. हमने MySQL भी सीखी है 11th में, Pandas हम अभी सीख रहे हैं. मीन्स दोनों के बीच में कोई सेम फाइल, दोनों के बीच में इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग. एक चीज़ तो अंडरस्टूड है कि मीन्स दोनों के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए. Only after setting that connection we can exchange data between both two. तो we will learn how to connect. मैं फिगर बाय फिगर आपको बता रही हूँ. Do try this practically. जब तक आप 1 या 2 बार नहीं ट्राई करेंगे it is not coming to you. Okay, first of all we'll open Python. नंबर 1 तो आपके सिस्टम में Python इंस्टॉल होना चाहिए एंड MySQL भी इंस्टॉल होना चाहिए. Got it? After that open Python. Python में फाइल मेन्यू है. Go to that file menu, click on open. जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे this window will open. In this window script option is there. Double click on this. Okay, after clicking this window will come. You will click here. Okay, and you will copy it. Control C कर लें या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें. ये पाथ कॉपी हो गया. After that we will open command prompt. CMD खोलेंगे in as an administrator. Okay, as an administrator open करने के बाद you will use first command, this is cd/. After that second command you will use cd space और जो आपने वहाँ से कॉपी किया था वो आप यहाँ पेस्ट करेंगे using Ctrl+V. ओके, पेस्ट कर दिया, कमांड आ जाएगी. यू विल प्रेस एंटर. देन आपका प्रॉम्प्ट ये यहाँ तक ये सारा प्रॉम्प्ट बच जाएगा. गॉट इट? उसके बाद यू विल टाइप दिस कमांड. दिस कमांड विल इंस्टॉल MySQL कनेक्टर इन योर सिस्टम. Python
स्पेस -m space pip install mysql -connector and ensure one thing, net must be connected, because when I was trying the net was not connected and I faced many problems, and after connecting to net it worked well. So first of all connect it with the internet. When you press enter, it will start downloading or installing your connector. I have already installed, that's why it's showing required already satisfied. Okay, ये जब आपका इंस्टॉल हो जाए सक्सेसफुली, आफ्टर दैट नेक्स्ट कमांड इज पिप इंस्टॉल MySQL client. ओके, यू हैव टू इंस्टॉल दिस. तो CMD में ये सारा काम करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यू विल ओपन MySQL विंडो. गॉट इट. अभी तक हमने क्या किया, पाइथन से पाथ कॉपी किया, पाथ कॉपी करने के बाद CMD ओपन किया हमने, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है and it is opened as an administrator. cd/ किया, then cd और जो हमने पाथ कॉपी किया था that is pasted. after that python -m pip install connector इंस्टॉल किया हमने, फिर MySQL client इंस्टॉल किया. got it. सब इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाए, then you will come to MySQL ओपन करने के बाद फर्स्ट कमांड यू विल टाइप सेलेक्ट करंट यूज़र. मीन्स जो इस SQL का करंट यूज़र है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज सिस्टम टू सिस्टम इट मे वेरी. अब मेरा करंट यूज़र है @localhost. ओके, अब ये चीज़ आगे यूज़ होगी, कहाँ होगी, लेट्स मूव हेयर. नाउ अगेन यू विल कम टू पाइथन विंडो. इन पाइथन विंडो अगर आपके CMD में कमांड प्रॉम्प्ट में जो हमने 2 कनेक्टर और क्लाइंट इंस्टॉल किए हैं, इफ़ दे आर डन सक्सेसफुली, तो यू इन पाइथन विंडो यू विल टाइप import mysql.connector और यू विल प्रेस एंटर. अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, देन इट मीन्स योर SQL कनेक्टर इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली. डन. उसके बाद हमने एक चीज़ और इंस्टॉल की थी, क्लाइंट. हाउ टू चेक दैट, फॉर दैट एनी वेरिएबल, ये MyDB लिखा है मैंने, माई डेटाबेस की शॉर्ट फॉर्म, यू कैन टेक इट ABC और वट एवर यू वांट, अ वेरिएबल इट इज़ इक्वल टू, ये फिक्स कमांड है, ये ऐसे ही लिखनी है आपने, mysql.connector.connect मीन्स हम MySQL को कनेक्ट कर रहे हैं. कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, होस्ट इज इक्वल टू, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था SQL में root@localhost था, तो माई होस्ट वॉज लोकल होस्ट. आपके सिस्टम में जो दिखाएगा आपने वो लिखना है यहाँ पर. ओके, यूज़र था मेरा रूट लोकल होस्ट पे. ओके, तो यूज़र जो आपके सिस्टम में दिखाए, @ से पहले जो है दैट इज़ यूज़र, @ के बाद जो है दैट इज़ होस्ट. ठीक है. एंड पासवर्ड सब अपने सिस्टम में मैंने सेम पासवर्ड 1 2 3 4 अपना पासवर्ड यूज़ किया हुआ है. आपके SQL का जो पासवर्ड है दैट यू विल मेंशन हियर, रेस्ट कमांड विल बी सेम. डन. फिर आप इस वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपने लिखा है, यू विल प्रिंट दैट. आफ्टर प्रिंटिंग दिस स्पेसिफिक डिस्प्ले इन ब्लू कलर, इट विल बी डिस्प्लेड. इट मीन्स योर कनेक्शन इज सेट. SQL और पाइथन में कनेक्शन सेट हो गया. डन. कनेक्शन सेट करना आ गया हमें. अब आगे काम शुरू करते हैं. हेयर वी विल क्रिएट अनदर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं. मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ कर्सर, मीन्स अ कमांड प्रॉम्प्ट फॉर द डेटाबेस. कैसे, एनी वेरिएबल यू कैन टेक हियर एंड इक्वल टू जो वेरिएबल आपने यहाँ लिया है दैट सेम वेरिएबल, डॉट फंक्शन का नाम अब सेम रखेंगे कर्सर. इन दिस कमांड ओनली दिस फंक्शन इज़ टू बी रिटर्न एज सेम. रेस्ट दोनों आप, ये वेरिएबल आपकी मर्ज़ी का और ये वेरिएबल कहाँ से आया, जो आपने यहाँ लिखा है. गॉट इट. प्रेस एंटर. आफ्टर दैट whenever any command you want to run in SQL that we can use very easily, सिर्फ एक ही मेथड है. माई कर्सर कहाँ से आया, दिस वेरिएबल, जो वेरिएबल आप इसकी जगह यूज़ कर रहे हैं सेम टू सेम, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. ओके, मीन्स ये कर्सर कमांड कौन सी है, मीन्स MySQL के प्रॉम्प्ट पे आप जो भी कमांड लिखेंगे दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड यूजिंग दिस वेरिएबल.
Okay, my cursor dot execute within the braces within the quotes write my SQL commands. जो भी आपकी SQL की कमांड्स हैं आपको आती हैं. फर्स्ट कमांड चलिए, जैसे मैं बना रही हूँ क्रिएट डेटाबेस 12th IP, एक 12th IP का डेटाबेस बना रही हूँ. कमांड रन कर दी, इट मीन्स बन जाना चाहिए. लेट्स चेक. अब मैंने SQL खोली एंड फॉर चेकिंग द डेटाबेसेस व्हाट वी हैव टू डू, अ कमांड इज देयर शो डेटाबेसेस. मैंने शो डेटाबेसेस हमें कॉलन लगाया, डेटाबेसेस के नेम आ रहे हैं, तो वन नेम इज हियर 12th IP बनाया मैंने, ये वाला बनाया ना. इट मीन्स कमांड मैंने पाइथन में दी और अपने आप डेटाबेस बन गया SQL में. हाउ मीन्स ये कनेक्शन सेट हो गया था. गॉट इट. अब चलिए, यहाँ पर था हमारा पासवर्ड तक डाला था, लेकिन अब हमें डेटाबेस के अंदर भी जाना है. अंदर जाने के लिए लुक हियर, इसी के आगे मैंने अब पाइथन में जाके डेटाबेस इक्वल टू जो भी या डेटाबेस में आपने अंदर एंट्री करनी है दैट नेम यू विल मेंशन हियर. आपने कोई डेटाबेस बनाया है या वहाँ पर ऑलरेडी कोई बना हुआ आपने यूज़ करना है, जिस भी डेटाबेस के अंदर आपने एंट्री करनी है दैट डेटाबेस नेम विल बी गिवन. ओके, अगेन दोबारा हमने कर्सर बनाया अपना. कर्सर मीन्स प्रॉम्प्ट, मीन्स SQL के प्रॉम्प्ट पे जहाँ भी काम करना है इस वेरिएबल के थ्रू करेंगे. दिस वेरिएबल डॉट एग्जीक्यूट विद इन द ब्रेसेस कोट्स के अंदर जो भी कमांड. अब मैं 12th IP में टेबल बना रही हूँ स्टूडेंट, जिसमें रोल नंबर, नेम और एज 3 कॉलम है. कमांड आई हैव रिटन, इट मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर बन गया. नाउ आई एम चेकिंग. आप वापस SQL में जाके अगर लिखेंगे शो टेबल्स, डेटाबेस के अंदर आ गई मैं, यूज़ 12th IP करके डेटाबेस के अंदर आ गई. यहाँ पर मैंने कमांड लिखी शो टेबल्स. शो टेबल्स लिखने के बाद इट इज़ शोइंग स्टूडेंट्स. ओके, स्टूडेंट की टेबल बनाई है मैंने, तो इट इज़ शोइंग दिस. इट मीन्स यहाँ तक मेरा काम हो गया. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कनेक्टिविटी, लेकिन आएगा जब आप खुद करेंगे. नेक्स्ट इज हेयर, टेबल बना दी थी मैंने. नाउ यूजिंग दैट सेम वेरिएबल माई कर्सर. माई कर्सर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये कर्सर मीन्स आप समझ लिए, यूजिंग दिस यू आर टाइपिंग ऑन द प्रॉम्प्ट ऑफ माई SQL और execute is a function for execution of any query. ओके, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. अब मैं 2 रोज़ की एंट्री कर रही हूँ. रोज़ की एंट्री की कमांड हमें पता है, रोज़ एंट्री की कमांड वी ऑलरेडी नो. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, और जितने भी कॉलम आपने ये डिफाइन किए हैं एज मैनी वैल्यूज़ इन द ब्रेसेस. ओके, मैंने सेम कमांड को 2 बार कर दिया. ठीक है, बट हेयर फॉर रनिंग और फॉर गेटिंग ऑल दीज कमांड सेव्ड आपको कॉमिट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. ओके, MyDB कहाँ से आया, जो मेन वेरिएबल जिसके अंदर आपने डेटाबेस को कनेक्ट किया था, दैट सेम वेरिएबल यू विल यूज़ डॉट कॉमिट. मीन्स इस डेटाबेस की जितनी कमांड्स हुई हैं दैट मस्ट बी सेव्ड. जैसे ही आप ये कर देंगे देन गो टू SQL. आप कमांड लगाएं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि भाई स्टूडेंट टेबल के सारी रोज़ दिखाए. यू कैन सी सेम 2 रोज़. वाई? बिकॉज सेम 2 रोज़ हमने बनाई थी. गॉट इट. आफ्टर दैट, ये तो था पाइथन में काम करके आप SQL को हैंडल कर रहे हैं. नाउ हेयर SQL वाली चीज़ें भी मुझे पांडा में ही देखनी है. हाउ? लुक हेयर, सेम वो डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ सेट की मैंने, सिर्फ एक डिफरेंट कमांड लग रही है, नथिंग एल्स. एक वेरिएबल लिया मैंने टेस्ट इक्वल टू PD. PD क्या है, हमारा पांडा, इसलिए आप देखेंगे मैंने यहाँ पांडा पहले इंपोर्ट कर लिया. पांडा का एक रीड SQL क्वेरी एक फंक्शन है, PD डॉट रीड अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर क्वेरी, एंड विद इन द ब्रेसेस जो भी क्वेरी आप चाह रहे हैं रन करना, SQL की क्वेरी पाइथन में रन कर रहे हैं हम. ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको यहाँ रन करके दिखाई थी. ओके, और कॉमा मेन वेरिएबल जिसके साथ आपका SQL का कनेक्शन सेट हुआ है, दैट इज़ MyDB. गॉट इट. जैसे ही आप टेस्ट को प्रिंट करेंगे इट विल शो द रिजल्ट. सेम सेकेंड क्वेरी मैंने यहाँ शो टेबल्स फ्रॉम 12th IP कमांड लगाई एक. फॉर दैट यू कैन सी हेयर रिजल्ट इज हेयर. क्लियर. डू ट्राई दिस. अगर जब तक ट्राई नहीं करेंगे नथिंग इज कमिंग टू यू. दीज स्टेप्स फॉर
setting connectivity between Python and MySQL. For that, first of all, we have started the Python packages. हमने import किए, install किए, database बनाया, then connection set किया, एक cursor object बनाया जो हमने myCursor बनाया था, queries को execute किया, extract data from result set extract जो execute किया था हमने, read किया, all that. क्लीन अप एनवायरनमेंट मीन्स जो कॉमिट कमांड यूज की. गॉट इट. क्लीन अप मीन्स एनवायरनमेंट को ख़त्म, मीन्स सारे काम ख़त्म होने के बाद फाइनली सेव, दैट इज डन थ्रू द कॉमिट कमांड. क्लियर. डू ट्राई ऑल दीज कमांड्स प्रैक्टिकली करने से ही आएगा. ओके, बाय, टेक केयर.